So in this class, first of all, who is going to tell me about the free strategy benefits? Who is going to tell me about it? Competitive advantages. Strategy, it is the first step strategy where is the goal is deciding to product and services, what kind of product that we are offered in the market. And first from product and service, this include industry. In industry, we selecting the key that offer good potential for making a profit, opportunities to work with minimum risk and competition. Second, innovation, and third is imitative strategy. Like FMCG product adopt this strategy, existing technology, knowledge, similar product, customer know about the product, doing more or less what others are already doing, degree of similarity, pure innovation. And second, ma'am, market. In this scope, ma'am, geographic range covered by market. It is local, global, or internationally also. Okay, free strategy is completed. Sonam, free strategy is completed. Differential market, niche market. Mass market, ma'am, deals in all over India, fulfill the need of consumer with one product, example Coca-Cola. And differential market, ma'am, focus on each and every consumer's need, not focus on market, only focus on consumer's need. And a niche market is narrow defined segment of the population likely to share interest or concern. और मैम ये फ्री स्ट्रेटजी मैम इंडस्ट्रियल एनालिसिस टूल मैम यूज करता है. Next, who is going to tell me about the cost benefit? Who is going to tell me about the benefit comprises of three parts. That is, first one is value benefit, cost benefit, and the entry wages. Ma'am, this is the second stage, and it main focuses on that how we make worth for the customer about the product, that is low price with the high quality. And value benefit mainly comprises of that is what quality we use, what technology, and what credit facilities and the design and the delivery system use. And the cost benefit emphasizes on what cost technique we use that makes the product lower in the cost, that is lower cost with the large market scope. And the entry wages is all about that what difficulties we face when we enter in the market, that is lack of supplier, the customer taste and preference, change in customer taste and preference, and if we are not able to utilize our resource properly, and there will be competition. So to solve this, we analyze the SWOT, that is strength, opportunity, weakness, and the threat, so that we can analyze the market properly. Okay. Very good. Next, who is going to tell me about the strategy? Distinct हो और मतलब किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट बनाएंगे. और फिर सेकंड वन है कॉस्ट. मैम, इसके अंदर होता है कॉस्ट स्ट्रेटजी. हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट का को कहते हैं वो ये एक तरह का प्लान है और आइडिया है जो कि लॉन्ग टर्म में एक गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है. मैम, इसमें दो तरह के होते हैं, जेनरिक और जनरल स्ट्रेटजी, एंड द सेकंड वन इज सुपर स्ट्रेटजी. मैम, जेनरिक स्ट्रेटजी में देखा जाता है, जेनरिक स्ट्रेटजी 3 टाइप्स का होता है मैम. डिफरेंशिएशन, कॉस्ट स्ट्रेटजी एंड द फोकस. डिफरेंशिएशन में हम लोग ये देखते हैं हम अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्टिंक्ट करेंगे. और मैम, कॉस्ट स्ट्रेटजी में देखा जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वी शुड फिक्स. एंड द लास्ट वन मैम इज द फोकस. फोकस में मैम देखते हैं हम लोग कि कौन सा मार्केट हम लोग को सेलेक्ट करना चाहिए. बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस के लिए शॉर्ट मार्केट या निश मार्केट ज्यादा बेनिफिशियल होता है. एंड द लास्ट वन इज and the second type is supra strategy. Ma'am, supra strategy means to say that one step ahead of generic strategy that includes craftsmanship, customization, modification. Very good. Okay. Next,
Competitive advantage. एडवांटेजेस एक कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक कंपनी को गुड और बेटर प्रोडक्ट सर्व करने में मदद करती हैं। अगर दो कंपनी के साथ राइवल्स के अगेंस्ट बेस्ट चीपली और बेहतर प्रोडक्ट अपने कंपटीशन के अगेंस्ट कंज्यूमर को प्रेजेंट कर सकते हैं और जिनके कारण उनको एडवांटेज मिल सकती है। Okay. Yes. So tell me about this competitive advantage. Sonam Bashtu, roll number 22. Ma'am, competitive advantage is a core competency related with competition, that is product quality. Ma'am, it includes resources that is tangible and intangible and organizational capabilities. Ma'am, resources includes any assets, capabilities, organizational process, information, knowledge that contribute the firm's performance. Ma'am, it includes tangible and intangible. Ma'am, tangible, it is easily identified, example, cash, land, machinery, and intangible, which is not easily identified, example, information, knowledge, operation, expertise, based practices, goodwill, etc. And organizational capabilities, ma'am, abilities, skill, competencies used to make profit from tangible and intangible resources. And competency, ma'am, include transformational or combinational. Transformational, ma'am, make the firm make its product and service better in value, and combinational, ma'am, combining tangible and intangible resources. Very good. So the answer is the small industries, and after that we just need to utilize all these kinds of benefits. How we can use the organizational capability, how we can utilize the tangible and intangible resources which are present in the organization. So we completed all these strategies of small business. Today we are going to complete the industrial life cycle. So just I am sharing the screen. Please look at things. So industry's life cycle approach to small business strategy. I already discussed about PLC product life cycle, and somehow the industrial life cycle is like that only. Okay. So first of all, we just need to see all the stages: introduction, growth, maturity, and decline. But before understanding all the points that what is the market scope is required in the introduction stage, niche market, in growth stage, mass market, maturity, mass market. Before this, just write some basic points in that. Before that, write basic points. Industrial life cycle shows 5 stages. 5 stages. One is shakeout stage, but that is not basically written in that particular diagram. But I will explain it that what does it mean. Okay. So there are 5 stages basically. The first one is introduction stage. The first one is introduction stage, introduction or embryonic. We can say introduction stage. Okay. The first one is introduction stage. Introduction stage. Second one is growth. Introduction, comma, growth, comma, shakeout, comma, maturity, and decline, Introduction, growth, shakeout, maturity, and decline. 5 stages are there in the industrial life cycle. Okay. So first of all, what is in the introduction stage or embryonic stage? क्या होता है? ठीक है? So in the first stage, basically the organization or the industries are busy in doing the innovative thing. They just need to do something different, whatever the another industries are providing, what is basically in the market, what kind of demand the consumers have. So we just need to analyze all these things in the introduction stage. But before that stage, even that is not written in this IAT. That is ideation or the new product development stage. So just move toward it कि वहां पर भी सेम वही चीज होता है. प्रोडक्ट के बारे में हम बेसिकली डेवलप करते हैं कि भाई R&D कैसे करें, प्रोडक्ट कैसा बनाए, मार्केट में डिमांड क्या है. All these things comes under the product development stage or ideation. In introduction, when the product is once launched,
what we are consider that what kind of demand of this product is in the market, product का demand कितना है, level क्या है product का मेरे, ठीक है. The firm उस समय जब वो introduction stage में होगा तो ऐसा हो सकता है कि जो आपके competitors होंगे they are very low, ठीक है, because in the introduction stage आपके जैसा product, आपके जैसा innovative product कोई market में लेकर नहीं आया है, but still the product का जो demand होगा वो as high नहीं होगा. Why the product demand is not as such high? Reason is that because you are basically introducing that product first time. So consumers are basically aware of that. We just don't need to purchase this product because this product is new in the market, right? The innovation is at a maximum definitely in the first stage, in the introduction stage, the innovation is maximum, but still, and the marketing is also high, but the revenue is not generated as such high. जितना आप innovation किया है आपने उतना आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, ठीक है. सो इस स्टेज में क्या होता है बेसिकली, इन इंट्रोडक्शन स्टेज 4 पॉइंट्स को लिखिए, 4 पॉइंट्स को लिखिए. क्या क्या होगा? इनोवेशन इज एट हाई, इनोवेशन बहुत ज्यादा होगा प्रोडक्ट में, इनोवेशन होगा बहुत ज्यादा प्रोडक्ट में. नेक्स्ट, इनोवेशन इज हाई इन द फर्स्ट पॉइंट, इनोवेशन आपका हाई होगा. सेकेंड, हाई फोकस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फोकस होगा हाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का. Focus high, the focus high distribution, high focus on distribution channel, high focus on distribution channel. Third is large investment in marketing, large investment in marketing to establish consumer awareness. Large investment in marketing. Marketing का मतलब यहाँ क्या है? Aggressive advertisement and use for creating awareness among the consumers. यानी कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, इसीलिए लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग टू एस्टैब्लिश द कंज्यूमर अवेयरनेस. नेक्स्ट ये तो हो गया आपके 3-4 पॉइंट. अब नाउ वी जस्ट मूव टुवर्ड दीज बेसिक पॉइंट्स. इफ वी सी द मार्केट स्कोप इन द इंट्रोडक्शन स्टेज, we just need to basically capture the small segment market. यानी कि जो मार्केट हमें कवर करना है वो एक टारगेट मार्केट होना चाहिए, बिकॉज आपका बिजनेस स्मॉल है. We cannot cover whole market at the single time and even in the introductory stage, because हमारे पास इतना कैपिटल है ना ही इतनी रिसोर्सेस है कि हम बिल्कुल लार्ज मार्केट में क्या हो जाए, बेसिकली स्प्रेड हो जाए. इट इज नॉट इवन पॉसिबल एंड वी हैव नो आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स विल गेट इट फ्रॉम आवर प्रोडक्ट. यानी मैंने जो प्रोडक्ट मैं लेकर आई हूँ उसका रिस्पॉन्स, यानी उस प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स कंज्यूमर क्या देगा उसका भी आइडिया नहीं है. तो दैट इज अ रिस्की स्टेज इवन, राइट. सो इस केस में वी जस्ट मार्केट स्कोप में वी जस्ट नीड टू मूव टुवर्ड द नीश मार्केट. सिर्फ नीश मार्केट क्या करना है, हमें यूज करना है, ठीक है. ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, यानी ऑब्वियसली इन इंट्रोडक्शन स्टेज वी जस्ट नीड टू कीप द प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम द अदर competitors or other industry, whatever the other industries are basically providing, we just need to differentiate our product. So if we are saying the market scope, that should be niche market. Second one is optimal strategy. That should be optimal is something best strategy. क्या होना चाहिए introduction में? We should use a differentiation strategy. It means the product होगा वो different होगा बाकी जो market में already competitors या बाकी जो industries present है उनसे, ठीक है. थर्ड इज इनोवेशन. तो मैंने आप लोगों को पॉइंट ऑलरेडी लिखवा दिया, इनोवेशन इज एट हाई. तो इनोवेशन होगा यानी आपका प्रोडक्ट जो है इनोवेटिव आइडिया के साथ बना होगा. कस्टमर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वी विल बी पायनियर. ऑब्वियसली वी एंटर्ड इन द मार्केट फर्स्ट टाइम विद समथिंग न्यू. तो ऑब्वियसली बहुत सारे यहाँ पर ऐसे आपको कस्टमर्स मिलेंगे जो प्रोडक्ट को अर्ली अडॉप्ट कर लेंगे. अर्ली अडॉप्टर्स का मतलब क्या होता है कि द कंज्यूमर विल एक्सेप्ट योर प्रोडक्ट, बट ऐसे कस्टमर्स बहुत रेयर होंगे. यानी वेरी रेयर कस्टमर विल बी द अर्ली अडॉप्टर्स, बिकॉज जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है, बेसिकली न्यू प्रोडक्ट है. सो सम एक्सपेरिमेंटल और इनोवेट, और जो हमेशा प्रोडक्ट जो है नए नए यूज करने की जिसको हैबिट होगी, उस टाइप के जो कस्टमर्स होंगे, दे विल बिकम द अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ योर प्रोडक्ट. So if we'll talk about the customer segment, people or the consumers will be early adopters and you will be the pioneers.
if we are saying about the organizational goal, what should be your organizational goal? The master technology, यानी कि आप जो टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कीजिएगा, that will be best, as well as you will try to get the benefit, but obviously you will not able to earn that. आप बेनिफिट चाहेंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा कि यू विल अर्न द प्रॉफिट बेनिफिट, बट स्टिल इन द इंट्रोडक्टरी स्टेज यू विल नॉट गेट एज सच, बिकॉज द पीपल एंड आर नॉट, इतने है ही नहीं कंज्यूमर जो आपके प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। सुपर स्ट्रैटेजी लाइक सुपर सपोर्ट, सिंगल माइंडनेस, यानी कि आप एक कह सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ, एक सिंगल माइंड के साथ, और कह सकते हैं एक फोकस के साथ यू जस्ट नीड टू बेसिकली आगे बढ़ना है, यू हैव टू मूव टुवर्ड या मूव फॉरवर्ड, राइट। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है कि इन द इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल, इन इंट्रोडक्शन स्टेज द मार्केट विल बी नीश मार्केट, ठीक है। इनोवेशन विल बी हाई, द प्रोडक्ट विल बी डिफरेंशिएट, ठीक है। प्रोडक्ट जो होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, द प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट, वी विल द पायनियर्स डेफिनेटली, एंड द सो मेनी वेरी लेस consumer will be purchase the product, early adopters, they are innovators, okay. The company will use the master technology, or we can say the latest technology, and the super strategy that they should be focused on the single particular market. So these are the first stage in the industrial life cycle. Clear हो गया सबको industrial life cycle क्या है? First point, growth stage, सबको clear हो गया? Next point, growth stage. Now in this case, in the growth, as its name suggesting that in growth stage what will be happen, आपका जो product होगा वो basically बढ़ेगा, increase होगा, product का demand increase होगा, revenue increase होगा। जो basically आपके consumers हैं, who are basically the early adopters, what they will start doing, they will doing the repeat purchase, यानी कि अब वो आपके प्रोडक्ट को बार बार खरीदेंगे if your product quality is fine, if they are satisfied with your product, and they also do one thing, they will do the mouth publicity as well, ठीक है। So some people जो होंगे, अर्ली मेजोरिटी का मतलब क्या है, यानी कि जो 70% यानी जो 100% में से 30% लोगों ने इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट को परचेज किया, नाउ द 70% पीपल विल आल्सो एंगेज इन दैट पर्टिकुलर स्टेज, मतलब जो 70% लोग नहीं खरीद रहे थे, नाउ दे आर आल्सो बिकमिंग योर कंज्यूमर, right, and they will start purchasing your product, and because of the aggressive advertisement and marketing is done in the introduction, the people are aware about your product. Now they understand that your product is very fine, they will start taking or purchasing the product. So in this stage, in the growth stage, what will happen? In this stage you will try to basically spread the market as well. अब आप niche market से थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा market area को ज्यादा cover करने की कोशिश करेंगे। So in growth stage, because your revenue is generating, because your demand is increasing, so you will be in the, we can say, in a beneficial place, right? तो यहाँ ग्रोथ वाले स्टेज में क्या क्या चीजें होंगी, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखिए, फिर ये जितने ग्रोथ के यहाँ पॉइंट्स है, विल अंडरस्टैंड दिस एज वेल। एट ग्रोथ स्टेज व्हाट विल बी हैपन, लिखिए, एट ग्रोथ स्टेज सेल्स रेट इंक्रीजेस फॉर स्ट्रॉन्ग फर्म, ठीक है। सेल्स जो रेट होगा वो बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा, सेल्स रेट, या फिर इंक्रीज इन सेल्स लिख लीजिए, इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन सेल्स। सेकेंड लिखिए, मार्केट शेयर ग्रोज, मार्केट शेयर ग्रोज, मार्केट शेयर ग्रोज, मार्केट शेयर आपका क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इनोवेशन इज फॉर मेकिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेटर, ठीक है। इनोवेशन होगा, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको बेटर बनाने की आप हो सकता है और कोशिश करें, डिमांड बढ़ रहा है तो यू विल वांट टू सर्व समथिंग मोर, ठीक है। रेवेन्यू विल बी इंक्रीज, आपका यहाँ रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू विल बी इंक्रीज इन दिस ग्रोथ स्टेज। People are now aware about your product, they are not find any kind of difficulty to adopt your product as well, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने में, ओके। तो व्हाट आर द, अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं। ग्रोथ में क्या होगा, मार्केट स्कोप बढ़ेगा, स्कोप मतलब बेसिकली मार्केट की तरफ आप इंक्रीज कर जाइए, अपने आप को फॉरवर्ड कर लीजिएगा, बढ़ जाइएगा आप मास मार्केट की तरफ। एक सेगमेंट से आप क्या कीजिएगा, दूसरे एरियाज को भी कवर करने की कोशिश कीजिएगा।
यहाँ पर सेम वही चीज रहेगा, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट ही रखना है, अलग ही रखना है। डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए आपका पहला ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अभी भी आप इनोवेशन पर ही डिपेंडेंट रहिएगा, कुछ और भी बेटर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इंप्रूवमेंट लाइएगा प्रोडक्ट में। यहाँ पर आपके वैसे कस्टमर्स, अर्ली मेजॉरिटी यानी वो कस्टमर्स जिन्होंने ग्रोथ इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया, नाउ द कंज्यूमर्स, अर्ली मेजॉरिटी वाले जो कंज्यूमर्स होंगे वो भी आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेंगे। सो नाउ द मोर एंड मोर कंज्यूमर्स आर गोइंग टू यूज योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज करेंगे, डिमांड करेंगे आपके प्रोडक्ट का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होना चाहिए? यू वांट टू बी अ लीडरशिप, यू वांट अ लीडर इन द मार्केट बिकॉज नाउ यू आर इन द ग्रोथ स्टेज, ठीक है। तो जो बाकी कॉम्पिटिटर्स वगैरह है उससे आप बेटर पोजीशन पे हो, तो यू वांट टू बी अ लीडर इन द मार्केट इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के आपके जितना बेस्ट कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। सुपर स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या आप यूज कर सकते हैं, यानी क्राफ्टमैनशिप, कस्टमाइजेशन, थोड़ा बहुत चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन विच वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड इन द इनोवेशन। तो यहाँ पर आपके ग्रोथ स्टेज में क्या क्या सिचुएशन का समझ में सबको आ गया ग्रोथ में? ओके, नेक्स्ट हो गया। अच्छा बताइए तो जरा, अमन, रोल नंबर 2, बैच 1। आई होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, फिर लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है मैम, प्रोडक्ट डिफरेंट होता है मैम, अदर्स कॉम्पिटिटर्स है इस मार्केट पे होता है मैम, और फिर पायनियर होता है और अर्ली अडॉप्टर होता है मैम, और मास्टर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होता है इसमें। ओके गुड। ग्रोथ स्टेज जो है जो होते हैं मैम वो रिपीट परचेज करते हैं, तो और अल्टीमेटली हम लोग का रेवेन्यू हाई हो जाता है मैम। ग्रोथ स्टेज सेल्स रेट इंक्रीजेस, मार्केट शेयर ग्रोस, innovation is made for making existing product better, revenue will increase, और इसमें सुपरा स्ट्रेटेजी जैसे कि मॉडिफिकेशन, कस्टमाइजेशन, ये सब हम लोग इसमें हम लोग ये कर सकते हैं मैम, डाल सकते हैं। इतना ही बताइए। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द शेकआउट स्टेज। क्या होता है यहाँ पर? बेसिकली शेकआउट स्टेज जो है यहाँ पर जो फॉर्म जब है, जब कंपटीशन को फेस करता है, यानी कि शेकआउट स्टेज का मतलब एक्चुअली इसको मैच्योरिटी में ही लिया जाता है, बट यहाँ पर इसको डिफरेंट करके दिया गया है, तो मैं इसको अलग से बताती हूँ। जैसे जब हम किसी नए टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में एंटर करते हैं और काफी दिनों तक, मींस बहुत टाइम तक कोई कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आपको अपने जैसे प्रोडक्ट बनाते हुए नहीं दिखेंगे, सो यू आर एंजॉयिंग बेसिकली अ लीडरशिप, बोल सकते हैं एक लीडरशिप पोजीशन आपका हो जाता है इसमें। But now, when the competitors are entered with the same product, same type of product, with the better technology, then the existing firms are in the position of shake out. Means we can say that in this situation, in this case, the product is like कि जो आपका product है उससे better alternative market में present हो चुका है। ऐसे केस में the basically जो existing industries है उस पर एक adverse effect पड़ता है, तो इसी को कहते हैं शेक आउट स्टेज। अब शेक आउट स्टेज में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इसको लिख लीजिए एक बार, क्या होगा ये ध्यान से सुन लीजिएगा कि कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जिनकी इनोवेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, अगर न्यू कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में एंटर होता है तो उस पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिसका इनोवेशन वीक होगा, जिसका मार्केटिंग क्राइटेरिया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम वीक होगा, वही इंडस्ट्रीज पे ज्यादा इसका क्या होगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है और जो वीक कंपनीज है या इंडस्ट्रीज है, उनमें दोनों में यहाँ पे एक डिफरेंस की बात की गई है कि जो स्ट्रॉन्ग होंगे, जिनका मार्केट बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, ट्रस्ट बिल्ड हो गया कंज्यूमर के बीच में, हो सकता है एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, बट जो वीक कंपनीज होंगी या इंडस्ट्रीज होंगी वो बेसिकली क्या हो जाएंगी, डिक्लाइनिंग की तरफ बढ़ जाएंगी, एंड उनके जो कंज्यूमर्स होंगे दे विल मूव टुवर्ड द अनदर फर्म फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट। ये बेसिकली शेकआउट स्टेज में होता है, ठीक है। तो क्या होगा शेकआउट स्टेज में, इसमें लिखिए स्ट्रॉन्ग फॉर्म स्टार्ट टू गेन मोर मार्केट शेयर। चलिए शेकआउट स्टेज में क्या क्या सिचुएशन आएगा, लिखिए इसमें
strong firms start to gain more market share. Strong firms start to gain more market share. More market share. जो स्ट्रॉन्ग फर्म होगा, ठीक है, और वो बेसिकली ज्यादा मार्केट शेयर मिलेगा, बिकॉज अगर कोई नए भी कॉम्पिटिटर आ रहे हैं तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला एज सच, राइट। एंड हो सकता है कि वो नए कॉम्पिटिटर की वजह से आपके प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा बढ़े, क्योंकि प्राइस का बहुत ज्यादा इसमें आएगा सिचुएशन। अगर आपका प्रोडक्ट 200 रुपीज का, नए वाले जो इम्प्रूव लेकर आए 250 का, बट आपका मार्केट बेस स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड स्टिल उसी सिचुएशन में रहे, ग्रोथ ही हो, ठीक है। लेकिन जो वीक वाले होंगे उनका सिचुएशन वर्स हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इनोवेशन, स्ट्रॉन्ग इनोवेशन, स्ट्रॉन्ग इनोवेशन, मार्केटिंग कस्टमर सपोर्ट, marketing customer support, product quality, and after sales services or support is need to increase sales. Strong firms start to gain more market share. Strong firms start to gain more market share. The second point is a strong innovation, marketing, customer support, product quality, and after sales support or service is needed to increase sales. Is needed to increase sales. Is needed to increase sales. यानी कि ऑलरेडी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स जो है वो एंटर कर चुके हैं। अब आप अपने प्रोडक्ट, अगर आपका कुछ भी ऐसा सिचुएशन है कि आपको लग रहा है कि आप मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के साथ compete नहीं कर पाएंगे, तो आप कुछ एडिशनल सर्विसेज वगैरह भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। जैसे आपने कुछ सर्विस बोल सकते हैं कि कुछ कस्टमर सर्विस या फिर सर्विस सेंटर की फैसिलिटीज दे दी, वारंटी गारंटीज है तो आपने उसको एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दिया, यानी कि यू इंक्रीज द वारंटी गारंटी सिस्टम, ठीक है। फिर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। मार्केटिंग और बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेटर और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो यू कैन डू ऑल दीज काइंड्स ऑफ चेंजेस इन द स्टेज ऑफ शेक आउट, बिकॉज शेक आउट का मतलब ही है कि नए फर्म दूसरे एग्जिस्टिंग फर्म्स में क्या हो रहा है, बेसिकली कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, कंपटीशन इंक्रीजेस, यस सोनम? मैम सेकंड पॉइंट अगर मार्केटिंग कस्टमर सपोर्ट, कॉमा देके लिखेगा, मार्केटिंग कॉमा कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी, after sales services and support, is needed to increase the sales, जो प्रोडक्ट है उसको इंक्रीज करने की आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर्स के साथ है, ठीक है। आपका जो कंपनी इंडस्ट्रीज है वो कॉम्पिटिटर के साथ तो कम्पीट करना है, तो अपने प्रोडक्ट में आप कुछ चेंजेस ला सकते हैं। मार्केट स्ट्रैटेजी बदल लीजिए, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट ले आइए, या तो फिर अगर आप सेल्स सपोर्ट या फिर सर्विस जो है वो एक्स्ट्रा एडिशनल देना शुरू कर दीजिए, वारंटी गारंटीज को एक्सटेंड कर सकते हैं आप। So you can do all these things in the shakeout stage. The third point is competition increases and companies use marketing and pricing techniques to grow among the competition. Competition increases and companies use marketing and pricing techniques to grow among the competition. यानी कि अब यहाँ पर वो हो सकता है मार्केटिंग और प्राइसिंग टेक्निक्स प्राइस को लो करे, ठीक है, प्राइस को लो कर लेगी। जैसे मान लीजिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, 4-5 कॉम्पिटिटर्स हैं। अब ये 4-5 जो कॉम्पिटिटर्स हैं ये एक जैसा ही प्रोडक्ट बनाएंगे, उनकी प्राइस भी कहीं ना कहीं जो होगी सिमिलर टाइप की होगी। तो व्हाट यू कैन डू फॉर दैट, यू कैन यूज यू कैन स्टार्ट यूजिंग द लो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि आप प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो क्या करने की कोशिश कीजिएगा, लो करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जो आपके प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो मार्केट में बना रहे और आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर सेल होता रहे इन द शेक आउट स्टेज। यानी कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे डील करना है उसकी बात की गई है शेक आउट स्टेज में, कि आप अपने मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, सर्विस सेंटर आफ्टर सेल सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हो, प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, प्राइसिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट कर सकते हो, और साथ साथ में जो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग फर्म्स होंगे मे बी दे आर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड बाय दिस
entering of the new competitors in the market. So ये आपका shakeout stage था. किसी को कोई doubt है इसमें? Anyone have any doubt in this stage? मैम एक बार और फिर से बता दीजिएगा. Shakeout stage is something when the new competitors are enter in the market. चाहे आप growth stage तक थे, फिर अचानक से जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए एक चश्मा था, ये तो इनोवेशन नहीं है, बट स्टिल ये प्रोडक्ट आप बना रहे थे, अब इसी तरीके के और भी कंपनीज जो ऐसे प्रोडक्ट के साथ मार्केट में एंटर हो गए, तो अब वो आपके क्या बन गए, कॉम्पिटिटर्स बन गए, राइट? अब कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे डील कीजिएगा? देखिए, अगर आपकी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपका मार्केटिंग क्राइटेरिया, डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया, प्रोडक्ट क्वालिटी इज नॉट एज सच, तो इन दैट केस इट माइट बी पॉसिबल कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका डिमांड जो है वो लो हो जाए, बिकॉज बाकी जो कॉम्पिटिटर है वो बेटर आपसे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको अपने मार्केट का मार्केटिंग मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग रखना है, मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग रख के मैनेजमेंट, और साथ साथ में आप कुछ एक सर्विसेज वगैरह एड ऑन कर सकते हो प्रोडक्ट में, तो वो एड ऑन कर दीजिए। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह देना शुरू कर सकते हैं आप, एक्सटेंड कर सकते हैं कस्टमर ये गारंटीज वारंटीज, ठीक है? साथ साथ में आप प्राइसिंग टेक्निक्स वगैरह यूज कीजिए, अगर आपको लगे तो आप प्राइस लो भी कर सकते हैं, बिकॉज आपको कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे मार्केट में हो चुके हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं जब कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई लेवल का होगा, तो द पीपल विल गेट सो मेनी अल्टरनेटिव्स, तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो आपके भी कंज्यूमर्स होंगे वो स्विच कर जाएंगे दूसरे ब्रांड की तरफ, दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे इंडस्ट्रीज की तरफ। तो इसको कम करने, इसको रोकने के लिए बेसिकली शेकआउट स्टेज में आप अपने आप को एज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म एस्टैब्लिश कीजिए, प्रोडक्ट में चेंजेस की जरूरत है चेंजेस कीजिए, और बाकी यू कैन अदर टेक्निक्स यू कैन ऑल्सो यूज फॉर दैट, ठीक है? ताकि आप मार्केट में टिक सको और कॉम्पिटिटर के साथ कंपीट कर सको। आगे बात समझ में संभव? यस मैम। ओके, so shakeout stage सबको क्लियर हो गया what is happening in shakeout stage? Let's move to the next point, that is maturity. Maturity stage में क्या होता है? Maturity stage में बेसिकली आपका एक ऐसा लेवल पे आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा that is the peak stage, यानी कि यहाँ पर एक मिनट, जो आपका प्रोडक्ट बेसिकली यहाँ पर वो यहाँ पर होगा, यानी कि इस मैच्योरिटी स्टेज में पीक सेल्स पे होगा, यानी यहाँ पर आपका मैक्सिमम सेल होगा प्रोडक्ट, ठीक है? आप एकदम ग्रोथ के मैक्सिमम लेवल पे होंगे, यानी इससे ज्यादा ऊपर अब आपका प्रोडक्ट जो है वो ग्रो नहीं करेगा, पीक पर होंगे आप बिल्कुल मैच्योरिटी स्टेज में। आपका एक स्टेबल ग्रोथ हो जाएगा, यानी कि अब इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा, वो एकदम उसी लेवल पे आप फिक्स हो जाएगा, पीक ग्रोथ पे पहुंच के बिल्कुल स्थिर हो जाइएगा, ठीक है? यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो अपनी पॉलिसीज वगैरह को स्ट्रॉन्ग रखेगी ताकि वो लेटर ऑन, मतलब लास्ट टाइम तक या फिर बोल सकते आगे तक वो सर्वाइव कर सके, बिकॉज अगर मैच्योरिटी लेवल पे आप पहुंच गए उसके बाद फाइनली क्या हो सकता है, आपका कंपनी डिक्लाइन की तरफ बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा आपके कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी शेकआउट स्टेज में एंटर कर चुके हैं। अब आप अपनी पॉलिसीज वगैरह स्ट्रॉन्ग रखिएगा, अपने प्रोडक्ट को अगर कोशिश कीजिएगा, अगर आपको लगे कि जो बाकी कॉम्पिटिटर्स आपसे बेटर बना रहे हैं प्रोडक्ट, या तो आप उनसे कुछ इमिटेट भी कर सकते हो, यानी उनको देख करके कुछ आप लर्न करके वैसे टाइप के प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट भी ला सकते हो, ठीक है? अब मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा कि आपके कस्टमर जो है वो बहुत सारे होंगे, मैक्सिमम कस्टमर्स होंगे, फर्म जो है वो एक ऐसे सिचुएशन पे होगा, एक स्ट्रॉन्ग मार्क्स या स्ट्रॉन्ग फर्म की तरह उसका पहचान होगा, आइडेंटिफिकेशन उसका एक स्ट्रॉन्ग फर्म की तरह होगा, ठीक है? और हो सकता है कि उस तरीके के जो प्रोडक्ट मार्केट में बन रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स तो एंटर हो चुके हैं तो बहुत सारे हैं, बट आपका पोजीशन ऑलरेडी एक मार्केट में हो चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हो सकता है कि बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटर्स हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट में अगर इनोवेशन एज सच नहीं दिखे, या फिर आप काफी लॉन्ग टाइम तक उसी सेम प्रोडक्ट के साथ गए हैं, तो ऐसे केस में आप इमिटेशन इनोवेशन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट के लिए आपके जो कंज्यूमर्स है वो दूसरे अल्टरनेटिव के पास या दूसरे इंडस्ट्रीज के पास चले जाएं, यानी आप कंज्यूमर बहुत सारे होंगे, आप ग्रोथ भी आप एकदम मैक्सिमम लेवल पे हो, लेकिन स्टिल इफ यू विल नॉट इम्प्रूव समथिंग इन योर बेसिकली प्रोडक्ट, इफ यू विल नॉट एबल टू कॉपी समथिंग, जो इमिटेशन कह सकते हैं, अगर कुछ आपसे बेटर प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि चेकआउट स्टेज में ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो चुके हैं, मैच्योरिटी स्टेज में भी वो सारे कॉम्पिटिटर रहेंगे मार्केट में, तो हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल कि कंज्यूमर का लॉस होना शुरू हो सकता है,
जैसे अगर आप 10 साल मेच्योरिटी स्टेज में हो तो 8 years इट माइट बी पॉसिबल कि द एवरीथिंग इज लाइक स्टेबल, बट इन द लास्ट 2 years इट माइट बी पॉसिबल कि वो सारे कंज्यूमर्स जो है वो दूसरे प्रोडक्ट और दूसरे ब्रांड की तरफ मूव ऑन करने लग जाए, अगर उनको बेटर अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या क्या होगी चीजें इसमें लिखिए। मैच्योरिटी स्टेज में चीजें होंगी, मैच्योरिटी स्टेज में क्या क्या होगा इसमें लिखिए। कंज्यूमर अवेयरनेस इज मैक्सिमम, कंज्यूमर अवेयरनेस इज मैक्सिमम, कंज्यूमर अवेयरनेस इज मैक्सिमम, पीपल एबल या रिकॉग्नाइज योर प्रोडक्ट एंड ब्रांड इजिली, आपके प्रोडक्ट और ब्रांड को अब सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम सेल्स एंड ग्रोथ, मैक्सिमम सेल्स एंड ग्रोथ मतलब कि मैक्सिमम सेल्स और वाला सिचुएशन अब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट so many competitors are existing in the market या so many competitors are in the market, बहुत सारे मार्केट में competitors होंगे। It might be possible that if the consumers will get something better then they will move toward the another brand, मतलब gradually this will happen, not एकदम से सारे लोग चले जाएंगे, gradually the people will या consumers will move toward the another company or another industry if they will find that whatever the other industries are providing is better than you, ठीक है। तो ऐसे केस में gradually the consumer will start switching the brand, यानी brand switch करना या इंडस्ट्रीज जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट स्विच करना शुरू कर देंगे, दूसरे इंडस्ट्रीज या दूसरे जगह से वो प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देंगे। क्लियर हो गया? तो दैट दिस थिंग इज हैपन इन मैच्योरिटी, ठीक है। ग्रोथ विल बी स्टेबल, मैक्सिमम सेल विल बी हैपन, consumers are maximum, everything is stable, but if you will improve, if you will not change the product, if you will not give the better opportunities to the customer, then in that case it might be possible that gradually your consumer will move toward the another brand or company. Clear हो गया? मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा सिचुएशन, मैच्योरिटी स्टेज में सिचुएशन क्या होगा, सबको क्लियर हो गया? So in the maturity stage, definitely like growth stage, your market share is fine, ठीक है। The cost, यहाँ पर जो प्राइस या कॉस्ट होगा प्रोडक्ट का, you can put it low, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप लो रख सकते हैं। इमिटेशन या इनोवेशन में से अब आप मार्केट के कॉम्पिटिटर्स के साथ compete कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं you will try to sell those product which is demanded in the market and whatever the competitors are making. So in this case maybe imitation is done, यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि आप दूसरे के प्रोडक्ट को कॉपी करें, ठीक है। लेट मेजोरिटी, यहाँ पर जो बेसिकली जो जितने कंज्यूमर्स थे जिन्होंने ना मतलब जो 100% में जो 30 और 70% वाले कंज्यूमर्स थे, अब यहाँ पर बहुत सारे कंज्यूमर्स मतलब मेजोरिटी कंज्यूमर्स यहाँ पर आपके पास होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल, आपका सबसे ज्यादा गोल क्या होगा, अपने आप को स्प्रेड करना, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को क्या करना, मार्केट में प्रॉपर एस्टैब्लिश करना, तो अब मार्केट शेयर को इंक्रीज करना होगा, ठीक है। आप यहाँ हो सकता है कि कॉस्ट वगैरह यहाँ पर सुपर स्ट्रैटेजी में यू कैन यूज द प्राइसिंग टेक्निक, चेंज करना चाहे तो यू कैन चेंज इट। So in maturity stage, what kind of market is required? Mass scope, मतलब market scope will be mass marketing. Optimal strategy, you will basically focus on the cost. Imitation you can use because innovation is already used in introduction and growth. Now you are basically competing with the competitors. So many customers are already there in your maturity stage, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके साथ काफी साल से जुड़े हुए हैं, वो आप ही का प्रोडक्ट परचेज करते रहेंगे, so the consumer will be maximum obviously. Market share, your goal is to increase the market share, जितना हो सके मार्केट शेयर को इंक्रीज करना, ये आपका गोल होगा। और अब यहाँ पर आप बिल्कुल ग्रोथ स्टेज के पीक पर हो तो ऑब्वियसली आप अच्छे खासे बेनिफिशियल स्टेज पर हो तो आप मार्केट को भी ग्रो कर सकते हो, लेकिन एक चीज यहाँ पर नहीं गिवन है, दैट ग्रेजुअली इट माइट बी पॉसिबल दैट कस्टमर विल मूव टुवर्ड द अनदर ब्रांड। यही चीज मैच्योरिटी में ही ये वाला चीज स्टार्ट हो जाएगा, ग्रेजुअली स्विचिंग ऑफ द ब्रांड्स ऑफ द कस्टमर। ये वाली सिचुएशन आपकी आएगी मैच्योरिटी में, ठीक है। तो मैच्योरिटी में किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट इन मैच्योरिटी स्टेज? सेम अल्टरनेटिव सी है काइंड ऑफ। डिक्लाइन स्टेज में क्या होगा? एट दिस स्टेज द सेल्स नंबर्स विल ड्रॉप, हो सकता है कि अब आपके प्रोडक्ट का सेल बिल्कुल कम हो जाए, ड्रॉप हो जाए, ठीक है, धीरे धीरे लो होने लग जाए।
ठीक है। और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि न्यू अल्टरनेटिव प्रोडक्ट आ चुके हैं मार्केट में, रूल्स रेगुलेशन का चेंज होना, ठीक है, एनवायरमेंटल कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, फिर कंपटीशन बढ़ जाना, बहुत ज्यादा फर्म का आ जाना, ये सब की वजह से आपका प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। सो प्रोडक्ट विल बी डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एंटर हो चुके हैं, ठीक है। यू आर बेसिकली बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल थिंग्स, आप बिल्कुल ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी और ये सब यूज कर रहे हैं और अपने आप को अपने मैच्योरिटी और ग्रोथ स्टेज में चेंज ही नहीं किया है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि उस स्टेज में भी आपका सिचुएशन क्या हो जाए, डिक्लाइन होने लग जाए आप, ठीक है। जैसे नोकिया ने क्या किया था, they never changed their policy. What they did, they are basically working with the Windows, they didn't change it in the Android. So this might be happen that if you will not basically up to the latest whatever is in the trend, what is the latest demand, if you don't know about that, what are the preference and the basically demand of the customers, in that case it might be possible that your company will be declined soon. तो यहाँ पर basically वही होगा कि something rules regulations are changes, मैक्सिमम वी कैन से कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, बेटर टेक्नोलॉजी के साथ आ गए, यू आर नॉट चेंजिंग द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। और भी चीजें हो सकती है जैसे इशू ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट इंक्रीज हो जाना, ठीक है, इन्फ्लेशन आ जाना, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कई बार रीजन होते हैं डिक्लाइन तक पहुंचने में आपके प्रोडक्ट का, ठीक है। द एक्सटर्नल फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये आपके थे बेसिकली डिक्लाइन स्टेज। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं इससे। तो यहाँ डिक्लाइन स्टेज में जैसे ही आप पहुंचिएगा, अब आप अपने आप कॉस्ट को सेव करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा नहीं रहेगा। तो इन दैट केस यू विल अगेन डूइंग द वर्क, आप डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कीजिएगा और अब आप एक पर्टिकुलर मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, रेडियो, पहले रेडियो चलता था, तब बहुत सारे लोग रेडियो को यूज करते थे, ठीक है। अभी भी रेडियो का डिमांड है, बहुत लोग अभी भी रेडियो को परचेज करते हैं, पर ज्यादातर ये रूरल एरियाज में होता है। अभी भी कुछ रूरल एरियाज में लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल रेडियोज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नए रेडियोज भी हैं तो बहुत रेयर जगह पे। तो एक मतलब कह सकते हैं ना कि जहां पर एक मास मार्केटिंग अप्रोच था, जहां पर बहुत ज्यादा एरियाज में रेडियोज अवेलेबल था, अब कुछ लिमिटेड एरियाज में अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप वही चीज कीजिएगा, आप बेसिकली यहाँ पर लिमिटेड एरिया में प्रोडक्ट को वापस से क्या करना शुरू कर दीजिएगा, सेल करना शुरू कर दीजिएगा। यानी आपने जो पूरा डाइवर्सिफाई किया हुआ था, मार्केट एरिया जो आपने इंक्रीज किया हुआ था, अब आप उसको शॉर्ट कर लोगे, क्योंकि अब मार्केट में आपके प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है। तो आप कुछ ऐसे एरिया या सेगमेंट को चूज करोगे जहां पर अभी भी आपके प्रोडक्ट का डिमांड होगा, तो आप वापस से नीश मार्केटिंग अप्रोच की तरफ मूव कर जाइएगा, ठीक है। ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, यहाँ पर कॉस्ट पे आपको फोकस करना है। आपको कॉस्ट जो है बेसिकली अब आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, कॉस्ट को डिक्रीज कर लीजिएगा और साथ साथ में अब आप बेनिफिट और प्रॉफिट के लिए यहाँ पर सोचने का आपको कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज अब आपको प्रॉफिट होगा नहीं, लेकिन स्टिल आप कॉस्ट पे ध्यान दीजिएगा, हो सकेगा तो कम कीजिएगा कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर भी आप इमिटेशन को देख सकते हैं इफ यू वांट, कि कुछ और जो इंडस्ट्रीज है उसके जैसा चेंज करने की कोशिश करने की, मतलब चेंज कीजिएगा आप। यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो बिल्कुल आपके मूव कर जाएंगे दूसरे एरिया में, दूसरे इंडस्ट्रीज के तरफ, दूसरे मार्केट के तरफ, दूसरे कंपनी के तरफ, ठीक है। बहुत ही रिमेनिंग मार्केट को सर्व करना ही आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल रहेगा, बिकॉज आपका मेजोरिटी जो मार्केट है वो दूसरे कॉम्पिटिटर ने क्या कर लिया होगा, कैप्चर कर लिया होगा, कवर कर लिया होगा, ठीक है। तो आपके पास बहुत कम मार्केट एरिया बचेगा, निश मार्केटिंग में डील कीजिएगा, एक लिमिटेड सेगमेंट में आप डील कीजिएगा। और यहाँ पर आप बेसिकली आपका सुपर स्ट्रैटेजी क्या होगा कि आप सर्व कीजिएगा अनडिजर्व कस्टमाइज, मतलब यहाँ पर बेसिकली अब आप कंज्यूमर को कोशिश कीजिएगा अट्रैक्ट करने का, बट इट इज नॉट इवन पॉसिबल इन द डिक्लाइन स्टेज। मतलब यहाँ पर बस सर्वाइव आप किसी तरीके से कुछ साल कर जाए, दैट विल बी द फोकस बस। एंड फाइनली फिर आपका जो बिल्कुल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। जैसे VCD के साथ हुआ, VCR के साथ हुआ, डिक्लाइन स्टेज तक पहुंचने का बहुत सारा रीजन है, जैसे टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलीट हो जाना, जब प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में उससे बेटर आ गया। जैसे VCD और VCR के ऊपर क्या आ गया, आपके कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनेट। इफ यू वांट टू basically see a song and music, you can definitely you can use internet, you don't need to go to use that particular what we can say, that CD and all, we don't need to use that, right? So because of the technological advancement and because you are not able to compete with the
new competitors, because their technology and because their innovation is very very, we can say very vast and we can say latest. ठीक है, तो ऐसे केस में in this situation आप compete नहीं कर पाएगा and finally you will decline. So this is the basically industrial life cycle. Anyone have any doubt in this topic? किसी को कुछ पूछना है इस टॉपिक में? किसी को? Ma'am, innovation in this stage is high. It focuses on distribution channel. I mean, highly focuses on distribution channel. Market is scope basically capture is about capturing a small market. Optimal strategy is that product must be different from other product. Customer segment is early adopter and pioneers. And it uses the best strategy, that is master strategy, master technology. There is a large investment in marketing to establish the customer awareness through aggressive advertisement. Okay, next stage, growth stage. Growth stage, Harsh, batch 2, roll number 46, बताइए. Yes, ma'am, in growth stage, the demand of the product is increased because in the introduction stage, less number of consumers have purchased my product. And if I have good features, if I have good quality, then he will purchase again. And through the word of mouth, my demand will also increase. And in this stage, we will try to expand our business more and more. We will try to achieve more and more market share. And in this stage, we adopted the mass marketing strategy. Yes, ma'am. And a strategy, we will use a differentiation strategy because we will try to add extra qualities features in our product because we want to in this stage we want to survive in the long run and to earn more and more profit. And my organization goal is to become a leader in the market. And in Supra strategy, we will customize our product and do craftsmanship. Okay. Third stage, who is going to tell me the third one? कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, टेकआउट में कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, तो इसके लिए जो प्राइसिंग टेक्निक होगी या एडवर्टाइजिंग टेक्निक होगी उसमें मतलब सुधार लाना होगा। और फिर उसके बाद फिर इनोवेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी वगैरह को मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज, गारंटी वारंटी सबको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यू कैन एक्सटेंड ऑल दीस फैसिलिटीज, राइट? ओके। और अगर मतलब कंपटीटर के आने से भी मतलब अगर कोई फर्म स्ट्रांग हो, उसका प्रोडक्ट अच्छा हो, तो हो सकता है उसके असर ना पड़े और वो ग्रो करता ही रह जाए। लेकिन अगर प्रोडक्ट का क्वालिटी अगर उतना सही ना हो या इनोवेशन उतना अच्छा ना हो, तो हो सकता है वो डिक्लाइनिंग स्टेज में जाने लगे। गुड। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्टेज। मैक्सिमम होता है, सेल्स भी मैक्सिमम होता है और मतलब सारा चीज स्टेबल होता है। और लेकिन अगर जो मैन्युफैक्चरर अगर मतलब अपने न्यू इनोवेशन या न्यू कुछ शिफ्ट नहीं करेगा प्रोडक्ट में, तो देन मतलब कस्टमर एक एक करके शिफ्ट हो जाएंगे और मैम और मार्केट भी लिमिटेशन होता है। ओके, ठीक है। Anyone else who want to give some more points in maturity? Raise your hand. Yes, roll number 30, Sonam. मैम, इसमें मैक्सिमम सेल्स और ग्रोथ होता है और इसमें मार्केट स्कोप मास मार्केटिंग पे होता है और गोल होता है मार्केट शेयर को इंक्रीज करना। इनका सुपर
होता है सिंगल पार्टिकुलर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द कॉस्ट, और इसमें पीपल होते हैं एबल टू रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट, अवेयरनेस मैक्सिमम होता है। कंपटीटर मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर होते हैं मार्केट में, और ग्रेजुअली कंज्यूमर मूव करते हैं दूसरे ब्रांड या इंडस्ट्री के साइड अगर बेटर ऑप्शन उनको मिले तो। गुड, ठीक है। Okay, anyone else who want to give tell me about decline stage? What is happening in that stage? Decline stage में क्या होता है? Tell me about decline stage में मैम सेल्स नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज होने लगता है। इसका बहुत सारा रीजन है। सपोज जैसे कॉम्पिटिटर्स इंक्रीज होने लगे, ज्यादा अल्टरनेटिव्स आ गया, रूल्स चेंज हुआ, इन्फ्लेशन आना, या फिर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं मैम वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, या फिर मैच्योरिटी स्टेज में खुद को चेंज ना किए हो मैम, और मैम इनका मार्केट स्कोप मैम नीश हो जाता है। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होता है मैम कॉस्ट पे फोकस करना, और इनोवेशन मैम इमिटेशन करना रहता है मैम। ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है सर्व रिमेनिंग मार्केट शेयर्स का, और शुक्रा स्ट्रेटजी मैम जो कस्टमाइजेशन नीड होता है, और मैम जिन्हें प्रोडक्ट नहीं दिया गया है उन्हें प्रोडक्ट के बारे में अवेयर भी करना होता है। वेरी गुड, चलिए ठीक है। सारे बच्चों ने आंसर करना चाहूंगी कि लाइक इन डिक्लाइन स्टेज व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस द कंपनी विल गिव, किस तरीके की कंपनी जो है रिस्पांस देगी अगर डिक्लाइन स्टेज में उनका प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ थिंग व्हिच दे कैन डू। फर्स्ट, या तो वो मार्केट से एग्जिट हो जाएगी, मींस वो बिल्कुल शट डाउन, यानी इंडस्ट्रीज बिल्कुल बंद, खत्म, ठीक है। या तो ये बचेगा, या तो न्यू प्रोडक्ट के साथ वापस से मार्केट में एंटर होगी, जैसे मोटोरोला ने किया था। पता है सबको मोटोरोला की स्टोरी? मोटोरोला की स्टोरी पता है? कुछ बेटर के साथ वापस से मार्केट में एंटर होना, या तो वो ये कर सकती है, ठीक है, विद बेटर और न्यू प्रोडक्ट दे विल एंटर इन द मार्केट अगेन, दे विल स्टार्ट विद द जीरो अगेन, ठीक है, या तो ये कर सकती है। थर्ड, वो क्या कर सकती है कि दे कैन मर्ज विद द अनदर इंडस्ट्री, जैसे आपका सत्यम जो था डूब गया, वो तो कंपनी था, क्या आईटी कंपनी था, उसको किसने ले लिया बेसिकली? टेक महिंद्रा ने उसको बेसिकली क्या कर लिया, उसको एक्वायर कर लिया। या ये पॉसिबल है, या तो आप मर्ज हो जाइए किसी कंपनी के साथ, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। मतलब डिक्लाइन स्टेज में जब कंपनी काफी ज्यादा लॉस में जा रही है तो दे कैन डू, दे कैन मर्ज विद अनदर कंपनी, ठीक है। या तो वो क्या कर सकती है बेसिकली, मतलब ये 2-3 जो इसके स्ट्रैटेजीज थे, या तो बिल्कुल बाहर एग्जिट कर जाइए आप, या तो फिर आप बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट के साथ वापस से मार्केटर करने की कोशिश कीजिए, यानी यू विल स्टार्ट विद द जीरो से बिल्कुल शुरू कीजिए। थर्ड, आप क्या कर सकते हैं, तीसरा आप कर सकते हैं कि आप दूसरे कंपनी के साथ, यानी दूसरे जो कंपनीज और दूसरे इंडस्ट्रीज के साथ मे बी यू कैन मर्ज। इट्स टोटली अप टू यू कि आप मर्ज होना चाहते हैं, आप मर्ज हो जाइए। या तो फिर कोई दूसरी इंडस्ट्रीज जो है वो आपको ऐसे सब्सिडियरी कंपनी, या तो फिर वो आपको परचेज कर लेगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। या तो कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो लॉस में चल रहे हैं, बट अगर वो चाहे खुद को तो उसी लेवल पे वो मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि वो अपना जो पोजीशन है उसको सुधार सकते हैं। डिक्लाइन स्टेज में भी दे विल अर्न द प्रॉफिट, यानी दे कैन मेंटेन देमसेल्फ एज इन दैट पर्टिकुलर स्टेज। Either they can start with the zero, they will introduce the new product and service in the market. The third one is that either they will exit, they will shut down the business totally, industries totally, or either they can consolidate and merge with another company. तो ये 3-4 चीजें जो रिस्पॉन्स होगी किसी कंपनी का जब वो डिक्लाइन स्टेज में पहुंचते हैं। तो किसी को कोई कुछ डाउट है ILC में,